السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم مرزا محمد رفیع سودہ کے قصیدے کا مطالعہ کریں گے۔ مطالعہ کرنے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ مرزا سودہ کی زندگی اور ان کے قصیدے کے متعلق آپ کو تھوڑی بہت جانکاری دوں۔ سودہ کی ولادت یعنی پیدائش 1713 میں دہلی میں ہوئی اور ان کی وفات 1783 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی۔ نام مرزا محمد رفیع اور سودہ تخلص تھا۔ سودہ کے والد تجارت کے سلسلے میں ہندوستان آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ سودہ کی تعلیم و تربیت دہلی میں ہی ہوئی۔ والد کی وفات کے بعد ترک کی دولت اڑا چکے تو گزارا اوقات کے لیے فوج میں سپاہی ہو گئے۔ ترک کا مطلب ہے ترک کی دولت اڑانا مطلب ماں باپ کی دولت انہوں نے خرچ کر دی اور پھر وہ ملازم سپاہی یعنی فوج میں بھرتی ہو گئے، مگر جلد ہی اس ملازمت سے دست بردار ہو گئے۔ خاندانی اعزاز اور قابلیت کی وجہ سے بادشاہوں اور امر کا تقرر حاصل ہو گیا۔ یعنی ان کا خاندان جو تھا یہ اونچا خاندان تھا، یعنی اس خاندان کو عزت و اکرام کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، اسی بنا پر ان کی بھی عزت کی جاتی تھی۔ مرزا سودہ کی بھی عزت اور احترام کیا جاتا تھا۔ جب تک ہو سکا دہلی میں ہی رہے، مگر آخری ایام میں فیض آباد آ کر شجر الدولہ کے دربار میں جگہ پائی اور باقی عمر لکھنؤ میں گزاری۔ قصیدہ نگاری کی فہرست میں سودہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے، یعنی سب سے پہلے قصیدے کے فہرست میں سودہ کا ہی نام آیا ہے۔ انہوں نے پہلے فارسی میں شعر کہنے شروع کیے اور اس میں وہ کمال حاصل کیا کہ بڑے بڑے استاد سے داد پائی، یہاں تک کہ بادشاہ شاہ عالم بھی اپنا کلام اصلاح کے لیے دینے لگے، یعنی بادشاہ بھی ان کو اپنا کلام یعنی اصلاح کے لیے دینے لگے۔ سودہ کو ہر صنف سخن پر قدرت حاصل تھی۔ اردو کے اکثر اصناف سخن پر انہوں نے کامیابی کے ساتھ طبع آزمائی کی ہے۔ قصائد اور ہجو کا مطلب ہے اس قصیدے کو کہتے ہیں جس میں کسی کی برائی یا اچھائی بیان کی جائے۔ ہجو میں وہ نام پیدا کیا کہ آج تک کوئی ثانی پیدا نہ ہو سکا، یعنی قصیدہ نگاری کی اچھائی اور برائی کے معاملے میں آج تک اس کا کوئی ثانی نہیں بن سکا۔ کن کا؟ سودہ کا۔ تو یہ تھی تھوڑی بہت مرزا سودہ کے زندگی کے متعلق کچھ باتیں۔ تو اب ہم ان کے قصیدے جس کا نام در ہجو اسپل مسمی بتضحیک روزگار ہے تو اسی کا مطالعہ کریں گے۔ تو قصیدے کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس قصیدے میں کچھ
ایسے الفاظ ہیں یا نامانوس الفاظ ہیں تو ان کے معنی میں آپ کے اس نصاب میں جو ہم مضمون پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی جو قصیدہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں کچھ غیر مانوس الفاظ جن کا ہمیں کبھی پتہ نہیں ہوتا ہے، تو ان کے یا مشکل الفاظ ان کے معنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جیسے کہ رکاب ہے، رکاب کا مطلب سواری، جانور یا جہاز پر سوار ہونے والا۔ خفیف، خفیف کا مطلب ہے ذلیل۔ مو کا مطلب ہے بال۔ بادباں، بادباں کا مطلب ہے کپڑا بندھا ہوا سمندری جہاز جو ہوا کے زور سے چلتا ہے۔ واو کا مطلب وہاں کا مطلب ہے وہاں۔ سواری، سواری اس کا مطلب وہ کمسن لڑکا جو لکڑی یا بانس کو گھوڑا قرار دے کر اس پر سوار ہو کر بھاگے۔ تضحیک کہتے ہیں مذاق یا ٹھٹھا، مذاق یا ٹھٹھا۔ روبر کہتے ہیں تیار، مستعد یعنی تیار ہونا۔ عرس کہتے ہیں دلہن کو۔ کوڑی کا مطلب ہے روپیہ۔ توبڑ وہ تھیلا جس میں گھوڑے کو دانا کھلاتے ہیں، توبڑ۔ بز کا مطلب ہے بکری۔ مرکب کا مطلب سواری۔ خرس، ریچھ۔ نمت، مثل۔ تاکہ، تیگ کہتے ہیں تلوار کو۔ زین گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے کا مسند۔ چرخ، پن چکی کے پہیے۔ نوچند، نئے چاند کی۔ ہمیں، یہیں یعنی فارسی الفاظ یہاں پر ہم۔ پون کہتے ہیں ہوا کو، ہندی لفظ ہے یہ پون۔ من، جو شخص جس نے، یہ بھی فارسی لفظ ہے۔ اسد ہے، یہ بھی فارسی لفظ ہے۔ اسب کہتے ہیں گھوڑے کو۔ ابلق، دونگرا گھوڑا۔ شکید، بڑھاپا۔ نقیب، خبر دینے والا۔ فگار، زخمی، مجرم۔ ہمار، گدھا، احمق۔ بد چشمی، بے مروت، بد خصلتی۔ سپاری، ڈالی یا چھالا۔ جنگا، میدان کو کہتے ہیں۔ سرو، سیدھے کھڑا خوبصورت درخت۔ ناچار، مجبور۔ باغ، لگام۔ بزم کا مطلب بکرا۔ توپڑ، جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا، وہ تھیلا جس میں گھوڑے کو دانا کھلاتے ہیں۔ تو اب ہم جو یہ قصیدہ ہے تو ان کے اشعاروں کی تشریح کریں گے۔ تو یہ قصیدہ جو درہج و اسب المسمی بتضحیک روزگار ہیں، اس میں ناتوان اور بد اتوار گھوڑا ایک علامت کے طور پر آیا ہے۔ اس میں آپ جب ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے اس میں جو گھوڑے کا ذکر ہے، ناتوان اور بد اتوار گھوڑے کا اسی کا یعنی ایک علامت کے طور پر اسے پیش کیا گیا ہے، جو مغلوں کی زوال پذیر حکومت کو ظاہر کرتا ہے۔
घोड़े की आड़ में शायर ने मुगल हुकूमत और इसकी कारगरी पर तंज किया है। यानी मुगल बादशाह जो थे उनकी नातवानी यानी उनकी कमज़ोरी को इसमें पेश किया है बतौर घोड़े की। यानी घोड़े उन्होंने एक अलामत के तो घोड़े को एक अलामत के तौर पर उन्होंने पेश किया है। तो क्या कहते हैं, एक दिन गया था मांगे ये घोड़ा बारात में, दूल्हा जो बयाने को चला उस पर हो सवार। शायर फरमाते हैं कि एक दिन घोड़ा बारात के लिए मांग कर लिया गया। एक दिन गया था मांगे ये घोड़ा बारात में, दूल्हा जो बयान को चला उस पर हो सवार। और जो दूल्हा इस पर बयान यानी दुल्हन को लाने के लिए चला, तो फिर क्या कहते हैं आगे, सब्जे से खत सियाह वसी से हुआ सफ़ेद था, सरसों जो कद सो हुआ शाख बरदार। इसका अपने ससुराल पहुँचते वक्त ये हशर हुआ। यानी जब वो ससुराल के लिए निकला दुल्हन लाने के लिए, तो इसका हशर ये हुआ कि इसकी नई नई दाढ़ी जो निकल आई थी सियाह होने के बाद सफ़ेद हो गई। यानी बहुत वक्त लगा। इसका लंबा कद एक फलदार शाख की तरह जग गया। यानी वो बूढ़ा हो गया। यानी ये बीवी को लाने के लिए इतना टाइम लगा कि उसकी दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई, थोड़ी बहुत जो दाढ़ी आई थी वो भी सफ़ेद हो गई। यानी वो बूढ़ा हो गया। पहुंचा गर्ज और उसके घर तक वो नौजवान शक्वत के दर्जे से कर इस तरफ गुजार। यानी कहते हैं यहाँ पर मुतकल्लिम कहते हैं पहुंचा गर्ज और उसके घर तक वो नौजवान शक्यत के दर्जे से कर इस तरफ गुजर। यानी कहते हैं कि जब वो खुदा करके वो बुढ़ापे की हालत में दुल्हन के घर पहुंचा, यानी ससुराल पहुंचा, तो क्या हुआ, मटा तो इस कदर है कि वो जो कुछ कि तुम सुना। गोया घोड़ा निहायत ही सुस्त और काहिल था। यानी जब वो वहाँ पहुँचे, ससुराल पहुँचा, तो घोड़ा काफ़ी सुस्त और काहिल था। लेकिन शायर फरमाते हैं कि लेकिन एक और दिन की हकीकत कहूँ मैं यार। शायर फरमाते हैं कि अब मैं इस घोड़े के बारे में एक और सच्ची बात बयान करता हूँ। यानी एक और स्टोरी आपको मैं सुनाऊँ। क्या कहते हैं, दिल्ली तक आन पहुंचा था जिस दिन की मराठ। क्या कहते हैं, जिस रोज़ मराठ दिल्ली तक आन पहुंचे, मुझसे कहा नकीब ने आकर है वक्तिकार। तो मुझे खबर देने वाले ने यानी नकीब ने मुझे कहा कि अब आजमाइश का वक़्त आ गया है। यानी लड़ने का वक़्त अब आ गया है। रकीब ने मुझे ये कहा, मुद्दत से कोड़ियों को है घर में बैठा होकर सवार, अब करूं मैदान में कारज़ार। एक उर्से से मुद्दत से मैं घर में बैठा रुपये उड़ा रहा हूँ। यानी मैं मज़े कर रहा हूँ। कोड़ियाँ यानी रुपया में उड़ा रहा हूँ, यानी घर में मज़े कर रहा हूँ। होकर सवार, अब करूँ मैदान में कारज़ार। अब कुछ
कर दिखाने का वक़्त आ गया है, यानी लड़ने का वक़्त अब आ गया है। नाचार होके तब तो बांधा मैं इस पे ज़ीन, हथियार बांध कर मैं हुआ जाके फिर सवार। तो फिर क्या हुआ? नाचार होके तब तो बांधा मैं इस पे ज़ीन, मजबूर होकर, नाचार होकर मैंने घोड़े पर ज़ीन बांधी और हथियार साथ उठाकर मैं घोड़े पर सवार हो गया। हथियार बांधकर मैं घोड़े पर सवार हो गया। जिस शक्ल से सवार था इस दिन मैं क्या कहूँ। उस रोज़ जिस तरह से मैं घोड़े पर सवार था, दुश्मन को भी खुदा न करे यूं जलील व खार। और मेरी खस्ता हालत हुई, यानी जब मैं घोड़े पर सवार था मेरी ऐसी हालत थी जैसे किसी दुश्मन, वैसी हालत खुदा ना करे दुश्मन की भी न थी, यानी वैसी हालत खुदा दुश्मन की भी न करे, वैसी हालत मेरी थी जब मैं घोड़े पर लड़ने के लिए निकला। चाबुक थे दोनों हाथ में पकड़े थे मैं मुंह में बाग, टिक टिक से पाशाने के मेरे पाँव थे फगार। घोड़ा सीधे चलने का नाम ही नहीं लेता था, यानी चाबुक थे दोनों हाथ में पकड़े थे मुंह में बाग। मैंने अपने दोनों हाथ में चाबुक पकड़ी थी, यानी रस्सी पकड़ी थी, चाबुक पकड़ी थी, और टिक टिक से पाशाने के मेरे पाँव थे फगार, और लगाम मैंने मुंह में थामी थी, यानी लगाम, घोड़ी के लगाम मैंने अपने मुंह में थामी थी। घोड़े की बुरी चाल से मेरे पाँव जख्मी हो गए। घोड़े के बुरे हालत से मेरी हालत जो थी वो बुरी हो गई थी, यानी मेरी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। जब घोड़ा जख्मी, मेरे पाँव भी जख्मी हो गए जब घोड़ा चलने का नाम नहीं लेता था। आगे से तो बढ़ उसे दिखलाऊं था शीश, पीछे नकीब हांके था लाठी से मार मार। क्या कहते हैं? सौदा, घोड़ा सीधे चलने का नाम नहीं लेता था, आगे से तो बढ़ उसे दिखलावे था सीनिस, इसके आगे से कोई अनाज और भूसा भरा हुआ थैला दिखा रहा था, ताकि घोड़ा आगे की तरफ कदम बढ़ाए, ताकि वो इस लालच में, यानी उसके आगे घास रखा गया, अनाज रखा गया तोबड़ में, तो ताकि वो इस लालच में आगे बढ़े और हम निकलें। और इसके पीछे नकीब से उसे लाठी से हाँक रहा था, और घोड़े के पीछे नकीब था, वो उसे हाँक रहा था, लाठी से हाँक रहा था, और उससे चलने की कोशिश कर रहा, यानी उसे चलने के लिए मजबूर कर रहा था। हरगिज वो इस तरह भी न लाया था रोबरो, हिलता न था जमीन से मानंद कोसार। इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी हरगिज वो इस तरह भी न था लाया था रोबरो, तमाम कोशिशों के बावजूद, यानी लाठी से पीट कर भी, लालच देकर भी घोड़े चलने के लिए तैयार न था, और ज़मीन से हिलता ना था, ज़मीन से मानद कोसार, और ज़मीन से बिल्कुल भी ना हिलता था, और एक ही जगह पर, यानी चलने का नाम नहीं लेता था, और पहाड़ की तरफ एक ही जगह जम रहा था, यानी पहाड़ ही की तरह
वो एक ही जगह रुका हुआ था, यानी चलने का नाम नहीं ले रहा था। इस मज़हक को देख हुए जमे ख़ास व आम अक्सर मदबीरों में से कहते थे यूं पकार। मुतकल्लिम कहते हैं कि सौदा फरमाते हैं कि घोड़े की इस मज़ाया सूरत हाल को देखने के लिए, यानी ऐसी हालत को देखने के लिए लोग भी जमा हो गए, यानी घोड़े की इस हालत को, ना चलने की हालत को देखकर काफ़ी लोग जमा भी हो गए। अक्सर मुदब्बिरों में से कहते थे यूं पुकार, इनमें से कुछ संजीदा लोग भी थे। वो कहते थे, क्या कहते थे? पहिए इसे लगाओ कि तो हुए ये रवां, या बांधे पून के दो इख्तियार। पहिए से इसे लगाओ कि ता हुए ये रवां, कहते थे कि घोड़े को पहिया लगाओ। इनमें से कुछ लोग कहते थे कि घोड़े को पहिया लगाओ फिर ये चल पड़ेगा। या बांधे पून के दो इख्तियार, या फिर इसके साथ बांध जैसा कपड़ा बांधो, यानी इसके साथ एक कपड़ा बांधो, ताकि वो कपड़ा बांधो जो कि हवा से उड़े, ताकि वो हवा उसे अपने बाहों के साथ बहा के ले जाए। यानी ऐसा कपड़ा इस घोड़े को बांधो, जब वो हवा आ जाए तो वो भी घोड़ा भी चलने पर मजबूर हो जाए। मैं क्या कहूँ गरज कि इसकी शक्ल देख तेग ज़बान से काट के करता था गुल निसार। क्या कहते हैं सौदा फरमाते हैं कि अब मैं कौन कौन सी बातें बयान करूं, मैं क्या बताऊं। गरज ये कि जो भी इस घोड़े की शक्ल देखता, यानी ऐसी हालत को देखता, इस घोड़े की हालत को देखता, कोई ना कोई जुमला कह ही देता था, यानी बातें लोग करते थे जब घोड़े की हालत देखते थे। कहता था कोई बज़ को ही नहीं ये असब, कहता था कोई है गाह विलायत का ये हमार। यानी लोग कहते थे, बातें करते थे कि घोड़ा ऐसा है वैसा है। कोई कहता है कि ये घोड़ा नहीं बल्कि बकरी है। कोई इसे विलायती गधा कहता था। यानी तरह तरह की बातें घोड़े के मुतालिक कहते थे। पूछे था कोई मुझसे हुआ तुझसे क्या गुनाह, पूछे था कोई मुझसे हुआ तुझसे क्या गुनाह, अतवाल ने गद्दे न तुझे क्यों किया सवार। तो ये हालत देखकर, घोड़े की हालत देखकर मुझसे लोग कहने लगे, कोई मुझसे पूछता था कि तुझसे क्या गुनाह हो गया कि कोतवाल ने तुझे गद्दे पर बिठाकर जंग के लिए रवाना किया। कोतवाल ने गद्दे पर तुझे क्यों किया सवार, यानी कोतवाल ने तुझे इस गद्दे पर, यानी गद्दे जैसे घोड़े पर जंग के लिए भेजा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में इससे आगे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम।